Good morning, children. So, welcome back to our EVS class. Children, we are continuing our EVS class with the chapter A Day with Nandu. ओके हम लोग ने यहीं पे स्टार्ट किया था और यहीं पर बिफोर वेकेशन ख़त्म किया था. तो जस्ट लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर सो दैट आई कैन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विथ यू ऑल. Hope you all are well and fine and in a good healthy mood. Okay, now it's time to return back to our work, okay, to study. And the chapter again, just for the quick revision, I am taking up A Day with Nandu. Okay, those who have not gone through with the live classes that I have taken, and we have just gone with this chapter, so you can take the help of this video. So Nandu wakes up. The very first page is all about Nandu wake up. Nandu, who is Nandu? Nandu is an elephant. वो नंदू उठता है और देखता है अपने आप को कि opened his eyes for a few seconds. He was not sure कि वो कहाँ है. It seemed that he was surrounded by the forest, big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. So there was अम्मा, उसकी अम्मा होती हैं. And the grey forest that he had imagined, जैसा कि वो आँखें खोल के सोचता है कि वो एक जंगल में है, was actually the legs and the trunks of his family members. जैसा कि वो सोचता है कि मैं घने जंगल में हूँ, जबकि वो जंगल में नहीं, अपनी ही फैमिली मेम्बर्स के लेग्स के बीच में. क्योंकि देखो हाथियों के ट्रंक और लेग्स तो कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं ना बेटा. एंड नंदू वॉज स्लीपिंग, तो उसे ऐसा लगा कि वो घने जंगल में है, लेकिन वो जंगल नहीं. इट वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड द ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर. So the sun was overhead and was getting hot. अब नानी जो थी, what elephants do? They trumpeted, made a loud noise. So Nani was the oldest herd of elephants. She started moving towards the jungle. अब ये टाइम सुबह का जो होता है, इस पूरे ग्रुप को जंगल की तरफ जाना होता है. The female elephant saw her and started to follow. Nandu also went with them. अब ये पूरा हर्ड, पूरा झुंड जो है हाथियों का, वो जंगल की तरफ जाता है. और कहाँ? जहाँ पर पानी होता है. Started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. भाई सुबह का ब्रेकफास्ट तो सभी को चाहिए, तो सब खाने पीने चले जाते हैं. ओके, रिवर, द बेबी एलिफेंट एन्जॉयड प्लेइंग इन द वाटर. छोटे छोटे बेबी एलिफेंट्स एन्जॉय करते हैं. ले डाउन वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. कुछ जो फीमेल्स होती हैं मदर, ये मड में इसलिए रखते हैं बेटा खुद को, क्योंकि गर्मी से इनकी बॉडी को मड कूल रखता है, और ज़्यादातर पानी के पास रहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना. With this green labeled paragraph, children, we will come to know about many facts related with elephant. That adult elephant, जो एक बड़ा elephant होता है, can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day. Okay, now elephants do not rest very much. ये लोग बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं. only for 2 or 4 hours. इनकी जो नींद होती है वो सिर्फ 2 या 4 घंटे की ही होती है. ओके, देन एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर. किससे खेलना पसंद करते हैं? मिट्टी और पानी से. सो द मड कीप्स देयर स्किन कूल. एंड वाई द रीज़न बिहाइंड दिस? देयर स्किन, दिस मड कीप्स देम कूल. और ये जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, ईयर्स होते हैं, ऑल्सो वर्क लाइक अ fans. When elephants flap these to keep themselves cool. Okay, and there is the exercises for you all. Already we have finished this exercise. Here with this picture we can see that the elephants were playing with water in the pond. Okay, hope you all have enjoyed in the few years back when we have a chance to go to water park. So Nandu and fun and games. Nandu saw his brother, sister pulling each other, playing with water and mud. Okay, and in this next page again we have some facts related with elephants. Okay, you have read about Nandu and the elephant herd, Jund. And elephant herd had mainly females and baby elephants. जो ये एलिफेंट्स का झुंड होता है ना बेटा, हर्ड होता है, उसमें मेनली फीमेल्स होती हैं और उनके बेबीज़ होते हैं. और लीडर कौन होता है? द ओल्डेस्ट फीमेल. जैसे नानी जो थी ना, शी इज़ द ओल्डेस्ट वन, तो शी इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड. द हर्ड में हैव मैनी to 12
फीमेल एलिफेंट 12 से, और उनके यंग वंस, उनके छोटे बेबीज़ होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। जो मेल होते हैं 14-15 ईयर्स के लिए रहते हैं अपने झुंड में, देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। और 14-15 साल के होने पर वो अपने झुंड को छोड़ के चले जाते हैं दूसरे जंगल में, वो अपना अकेले रहना पसंद करते हैं। एंड नंदू जो है वो भी एक मेल एलिफेंट है, एंड ही विल ऑल्सो ग्रो अप एंड ही इज़ गोइंग टू लीव द herd also. Again, the filling part of the exercises are here in this chapter. Okay, do you love to be in a group? Do you like to live together? Why would you like or not like in the group? Now there are two options, as already I have explained you in the live class, कि क्यों अच्छा लगता है ग्रुप में रहना और क्यों नहीं अच्छा लगता है ग्रुप में रहना. यू आर गोइंग टू राइट दिस. एंड द मेन very important things that we have to discuss in this chapter: how do elephant feel when they kept in chains? Discuss and share your feelings. बेटा कैसा लगता है? आप खुद सोचो कि अगर आपको कहीं एक जगह पकड़ के बंद कर दिया जाता है, वो भी चेन से, तो इज़ इट गुड फॉर यू ऑल? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा? नॉट एट ऑल बच्चे, नॉट एट ऑल. So same things happen with the animals, and especially for this elephants, क्योंकि they used to carry loads and all ना, तो इसको काफ़ी लोग पकड़ भी लेते हैं. they use them as a pet and all. उनको चेन्स में बांध के रखते हैं. सो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड. यू कैन सी इन द पिक्चर दे यूजिंग एज अ सफारी एंड ऑल. सो still okay, they keep them for their earnings, but they need to take care of them well, and the treatment should be very good. Which animals have you sat on? Write their names. So here, ride on the elephant. क्या तुम कभी elephant पे बैठे हो? These are all the questions related with your own experience, so you can write it. Okay, have you seen any animal riding on another animal? Write its name. See, you can see a picture, a buffalo, and the crane is sitting on its body. So you can have a look and you can write all this. Already I have sent you this PDF, children. We have completed this chapter, and here is what we have to do. What do they say? Now again, this page is all the discussion related with the animals जिनको हम अपनी, या लोग कुछ हैं ऐसे जो उनको अपनी अर्निंग्स के लिए अपने पास रख लेते हैं, अपने पास अपना पेट बना लेते हैं, एंड दे यूज टू गो ऑन विद द अर्निंग. सो हियर इज़ द वेरी फर्स्ट. येस, यू ऑल कैन सी अ वेरी dangerous snake. The basket is the only home I have. And what the pathetic, जो वो एक सैड स्टोरी हमें सुना रहा है कि मैं कहाँ रहता हूँ, एक छोटी सी झबिया में, एक बास्केट में. आई हैव फॉरगॉटन दैट इट इज़ लाइक इन एन ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर. मैं तो भूल ही गया कि जंगल भी मेरा घर है या फ्रेश एयर. फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर. सो हैव यू सीन, वो जो दो बास्केट लेके चलते हैं और उसके अंदर स्नेक रखते हैं और फिर अपनी बीन बांसुरी बजा के दे यूज टू, वो कहते हैं कि ये स्नेक विल्स गोइंग टू बी डांस्ड एंड देन दे अर्न मनी. सो हियर द स्नेक इज़ टेलिंग हिज सैड स्टोरी कि मैं सिर्फ इस बास्केट को जानता हूँ और अपने स्नेक चार्मर को जानता हूँ. अगेन देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ एन हॉर्स. यू हैव ओनली सी हाउ फास्ट आई रन. आपने देखा है कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ. हैव यू सीन माई शूज़. क्या तुमने कभी मेरे पैर पे ध्यान दिया है, मेरे शूज़ पे ध्यान दिया है कि डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूव्स. ये जो पैरों में ना एकदम नीचे की तरफ खुर जिसको हम बोलते हैं, उनके खुर में वो लोग लोहे के शूज़ पहनाते हैं बेटा, उसको उसमें प्लग कर देते हैं, तो बहुत पेनफुल होता है ये हॉर्सेस के लिए. सो हियर द हॉर्स इज टेलिंग हर स्टोरी कि तुमने मुझे देखा तो है बहुत तेज़ रन करते हुए, लेकिन उस रनिंग के पीछे एक बहुत पेनफुल है कि मेरे हूफ्स पर हॉर्स शूज़ को फिक्स कर दिया जाता है. Now here the cat is telling its story. Mew, mew, I can just roam around everywhere. Children love me a lot. They pat me and also give me milk. बिल्ली को भी लोग पेट बना लेते हैं, उसको अपने पास रख लेते हैं और मिल्क देते हैं. गुट्टरगू, गुट्टरगू, do you know people specially call out to me
to feed me with grains. बहुत से कबूतरों को देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पास जो कबूतर होते हैं, लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उनको दाने खिलाते हैं, ग्रेन्स खिलाते हैं, और बहुत से लोग तो उसे अपना पेट भी बना लेते हैं. एंड हियर आर yes 2 monkeys. They are telling us their story. They make us dance and dance and dance even if we don't want to, or we are in pain. They too with an empty stomach. बहुत से तुम लोगों ने देखा होगा बेटा, सड़कों पर किनारे की तरफ कोई आदमी साइकिल पर अपने ये मंकीज़ को कैरी करता है, उन्हें क्लोथ्स पहनाए रखते हैं, एंड दे मेक देम डांस. उन बंदरों को नच के वो कहते हैं कि सी हाउ एंटरटेनिंग इट इज़, एंड देन पीपल यूज़ टू गिव मनी टू देम. कभी कभी वो जो मंकीज़ होते हैं ना, दे आर नॉट हैविंग देयर गुड फीड इवन, वो कुछ भी खाए हुए नहीं रहते, और उन्हें एम्प्टी स्टमक से, क्योंकि उनको इतना डर होता है अपने मास्टर का, कि वो उनके लिए डांस करते ही रहते हैं. And here is the bear. Okay, you see me in the circus dancing and jumping through the rings and fire. सर्कस तो nowadays is quite close, but if you have gone through और कहीं अगर देखा होगा तो उसमें भालू का डांस बहुत आता है. ओके, क्लैप करते हैं बच्चे, उसे enjoy करते हैं, लेकिन उस enjoyment के पहले you just be think of it कि उस भालू को भी कभी कभी पूरा खाना नहीं मिलता, वो आधे पेट बेचारा वो भूखा रह के डांस करता है और लोगों को एंटरटेन करता है. एंड what he gets only get a beating. सिर्फ उसको मारा जाता है so that he can dance well and entertain the people. So this is very sensitive and emotional stories behind this chain and bars, children. So you please be very sensitive with all these animals. If you have looking around, give the people the money and tell them कि आप अपने खुद तो खाना खा ही लीजिए, प्लीज़ फीड देम ऑल्सो. इन एनिमल्स को भी आप साथ ही साथ अच्छी फीडिंग करा दीजिए और अच्छी फूडिंग दे दीजिए. ओके, यू ऑल आर गुड my children, so take care of it. Now here again the questions has been given, how many legs does this elephant have? Now there is an activity for you कि आपको count करना है कि how many legs this elephant is having. Now do you know elephants help each other when in trouble? They join together to care for and rescue their young ones. Yes, a very very good fact कि जब भी कोई एक एलिफेंट मुसीबत में होता है तो दूसरे एलिफेंट्स जो हैं वो दौड़ के उनकी मदद के लिए आ जाते हैं. स्पेशली अगर कोई छोटा एलिफेंट, बेबी एलिफेंट प्रॉब्लम में है तो सारी एलिफेंट्स मिलके उसकी मदद करते हैं. यही चीज़ हमें भी फॉलो करना है ना. अगर हम मुसीबत में हैं या हमारा कोई अपना कोई हमारा नियर डियर वन प्रॉब्लम में है तो वी हैव टू स्टैंड यूनाइट विद देम इन देयर for the helping situation. Okay children, so this is all in this chapter Nandu, and we have covered this chapter as a revision, a day with Nandu. In the next video and the live class we are going to start the new chapter, Anita and the honeybees. Okay, a very interesting chapter. So this is all for today's class. Enjoy yourself, be happy and be safe.